Hello guys, welcome again to our online classes. Today in this lesson I will continue again exercise 8.1 in which two questions, question number 11 and 12 are remaining. Up to the 10th question we have discussed in the last two videos. Now I am starting from the question number 11. 11th and 12th both the questions are very long question, but the process of both the questions will be very smooth and easy. So first of all, what is the statement of the question number 11? देखो स्ट्रक्चर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. स्ट्रक्चर इज गिवन लाइक दिस. ऐसे हमें कोई स्ट्रक्चर दे रखी है और हमें इसी के लेफ्ट राइट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है. ए बी सी आप समझते जाना साथ साथ. ए बी सी एंड डी ई एफ ABC and two DEF, two triangles are there in which AB equals to DE. मैं साथ साथ लिखता हूँ given that in triangle ABC and triangle DEF, AB is equals to CD. DE, comma AB parallel to DE. हमें दे रखा है ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. चलो ये पैरेलल का केस हुआ. बात समझ में आई यहाँ तक. सेकंड हमें दे रखा है BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF and BC is parallel to EF. BC is parallel to EF. Clear है यहाँ तक? After it, vertices A, B and C joined with D, E, F respectively. तो A को D से join करवाया गया है, B joined with F, E and C joined with F. इस टाइप से ज्वाइन करवाए गए. डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवा रखा बुक में, तो मैं भी डॉटेड ले लेता हूं. क्लियर? ये स्ट्रक्चर है. अब हमें प्रूव क्या क्या करना है. टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना है ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम. ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम. फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है. सेकंड हमें प्रूव करना है बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम. बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम. बात समझ में आई. थर्ड हमें प्रूव करना है ए डी पैरेलल टू सी एफ. ए डी पैरेलल टू सी एफ and AD equals to CF. ठीक है यहाँ तक. फोर्थ हमें प्रूव करना है ACFD is a parallelogram. ACFD is a parallelogram. फिफ्थ हमें प्रूव करना है AC is equals to DF. फिफ्थ हमें प्रूव करना है AC is equals to DF. और लास्ट सिक्स जो पार्ट है जो हमें प्रूव करना है वो ये है ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. ये टोटल 6 पार्ट है जो हमें प्रूव करना है. तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. टू ट्रायंगल्स ABC and DEF in which AB and DE both are parallel and equal. BC and EF both are parallel and equal. Vertices A, B, C are joined to vertices D, E, F respectively. Then prove that ABED is a parallelogram, ABED is a parallelogram, DEFC is a parallelogram, AD parallel to CF and AD equals to CF
fourth ACFD is a parallelogram, fifth AC is equals to FD, and last triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो ये टोटल 6 पार्ट हो गए हैं। वैसे लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी बहुत रहेगा, तो मैं 1 बाय 1 प्रूफ से स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, हमें ये प्रूव करना है ABAD is a parallelogram। So just remember all the properties of a parallelogram। parallelogram की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये थी, if one pair of opposite side is parallel and equal, मतलब ये कोई पैरेललोग्राम, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये इक्वल है और ये पैरेलल है, तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूं अभी तक पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ABED AB equal to DE, AB equal to DE and AB parallel to DE। बात समझ में आई? ये देखो, ये देखा AB equal to DE and AB parallel to DE। So here one pair of opposite sides are equal and parallel, so ABED is a पैरेललोग्राम। बात समझ में आई? यहां तक मैंने क्या मेंशन किया है? ABED is a quadrilateral still now, but in this case AB is equals to DE and AB is parallel to DE, therefore this quadrilateral ABED will be a parallelogram। तो फर्स्ट अपन ने प्रूव कंप्लीट किया है, सेकंड पे डिस्कस करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग। BEFC is a parallelogram। अगेन इन क्वाड्रिलेटरल BEFC ध्यान से देखना, BC इक्वल टू FC, ये हमें दे रखा है BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF and BC is parallel to EF। Again the same condition, here one pair of the opposite side parallel and equal, so therefore this is also a BEFC is also a पैरेललोग्राम। क्लियर बात यहां तक? अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? AD is parallel to CF and AD is equals to CF। देखो हमें प्रूव करना है AD parallel to CF and AD equal to CF। बात समझ में आई होगी यहां तक? ABE here, देखो मैं लिखता हूं पहले, here ABED, पहले ABED लेता हूं, ABED कौन सा? ABED and BEFC are parallelograms। ये देखो अपन रिसेंटली प्रूव किया, ABED is a parallelogram and BEFC is a parallelogram। तो AD किसके इक्वल होगा? Therefore AD is equals to BE and AD is parallel to B। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, एंड
and if this is a parallelogram, then CF is equals to BE, CF is equals to BE and CF is parallel to BE. बस ये E है। अब देखो ध्यान से, AD BE के इक्वल, CF भी BE के इक्वल। मैंने ये कहा कि अक्स है वो 2 के इक्वल, Y भी 2 के इक्वल, तो अक्स और Y भी तो दोनों म्यूचुअली इक्वल ही होंगे ना। तो अपन यहां से बोल सकते हैं सो AD इज इक्वल्स टू CF एंड सेकेंड केस यहां से देखो, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये भी तो दोनों म्यूचुअली पैरेलल ही होंगे ना। तो यहां से B, ये B के पैरेलल, CF भी B के पैरेलल, देयरफॉर AD पैरेलल टू CF। ये अपना पार्ट कंप्लीट हुआ थर्ड। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें क्या डिस्कस करना है, ACFD। ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो ध्यान से, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD में देखो, अभी अपन रिसेंटली प्रूव किया AD इज इक्वल टू CF, AD is equals to CF and AD is parallel to CF, AD is equals to CF and AD is equals AD is parallel to CF. The same condition, same sides of a quadrilateral are parallel and equal. तो अपन यही कंडीशन वापस से, वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, तो अपना ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, therefore ACFD is a parallelogram. बात समझ में आई यहां तक। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें AC इज इक्वल टू DF प्रूव करना है। AC इज इक्वल टू DF, तो ध्यान से देखो, अपन बोल सकते हैं हियर ACFD is a parallelogram and we know that in a parallelogram the opposite side will be equal to each other. So ACFD is a parallelogram, तो AC and DF both are equal side, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, ये अपोजिट साइड होंगी और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, तो AC is equals to DF. So AC is equals to DF. अब हमें लास्ट ये प्रूव करना है सिक्स्थ पार्ट, जो कि अपने पास है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ध्यान से देखना, ABC एंड DEF, AB इक्वल्स टू DE, AB इक्वल्स टू DE, AB is equals to DE. This statement is given. बात समझ में आई। BC is equals to EF, ये भी हमें दे रखा कहीं ना कहीं, ये रहा BC is equals to EF, BC is equals to EF. This is also given. और साइड, थर्ड साइड की बात करें AC and DF, तो AC and DF अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। AC is equals to DF, which is true. So triple S criteria of congruency, we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF। और ये अपने टोटल 6 पार्ट कंप्लीट हो गए वन बाय वन। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बट इसका जो सोल्यूशन, जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ है, इजी है। स्टेप बाय स्टेप यदि अपन इसको डिस्कस करें और जो प्रॉपर्टीज यदि आपको क्लियर हैं हर एक पार्ट की, चाहे वो पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है, रेक्टेंगल, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट केस नहीं बन जाता है कि आपको ये समझ नहीं आएगा। आई होप सो अंडरस्टूड। सो पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
Okay, then now starting the last and final question of the exercise 8.1, which is the question number 12. And the statement of this question is ABCD is a parallelogram, trapezium in which AB parallel to CD. तो ये है A, B, C, D. ट्रेपेजियम में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, एक ही पेयर पैरेलल होता है. तो यहाँ पे ये दे रखा है कि AB इज पैरेलल टू CD. AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC. और हमें ये भी दे रखा साथ साथ AD इज इक्वल्स टू BC. तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको, इसकी टू साइड इक्वल होती हैं. देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. एंगल A और D इक्वल होना चाहिए. एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D. एंगल C इक्वल्स टू एंगल C एंड D बोथ विल बी इक्वल्स टू ईच अदर. ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ऐसे ज्वाइन करवाने पे, वो बाद में देखेंगे. इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD. तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे. डायगोनल AC, DG मीन्स डायगोनल है. डायगोनल AC, ये जो डायगोनल बनेगा वो BD के इक्वल होगा. क्लियर बात यहाँ तक? तो हम ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. पहले तो जो स्ट्रक्चर दे रखी है अपन इसको रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो हमें दे रखा फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेंशन करते हैं. गिवन दैट, जो हमें दे रखा है ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD and AD is equals to BC. AD ये हमें दे रखा है. हमें प्रूव क्या करना है इसके लिए? टू प्रूव वी हैव टू प्रूव जो कि हमें दे रखा है साफ साफ यहाँ पे. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B फर्स्ट, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D सेकेंड, थर्ड क्या है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD. फोर्थ, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD. ये हमें प्रूव करना है. अब बात करते हैं प्रूफ की. प्रूफ में देखो, सॉरी इसके लिए कंस्ट्रक्शन भी होगा एक छोटा सा. कंस्ट्रक्शन किस टाइप से? देखो, प्रोड्यूस AB, प्रोड्यूस AB अप टू द पॉइंट, इसके ऊपर अपन एक पॉइंट P लेंगे. वो कहाँ होगा? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जहाँ भी. प्रोड्यूस AB अप टू द पॉइंट P एंड जॉइन CP सच दैट CP इज पैरेलल टू AD. तो हमें ये P पॉइंट हुआ. बात समझ में आई? ये अपनी कंस्ट्रक्शन होगी जो मैं मेंशन करता हूं. प्रोड्यूस AB अप टू P and join CP such that CP parallel to AD. AD या DA जो भी बोलना चाहो कि ये दोनों क्या है? पैरेलल. ये अपनी क्या हुई? कंस्ट्रक्शन हुई. अब हमें प्रूफ करना है इसका. प्रूफ ध्यान से देखना. इन पहले मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल ABCD की. देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD parallel to PC, AD parallel to PC and AP parallel to DC, AP parallel to DC. और ये पैरेलल क्यों है? AP पैरेलल क्यों है?
AP इसलिए पैरेलल क्योंकि AB को आपने प्रोड्यूस करवाया और AB ऑलरेडी DC के पैरेलल है, यहाँ पे दे रखा है AB पैरेलल टू CD, AB DC के पैरेलल है, तो इसको आगे प्रोड्यूस करवा दोगे तो भी ये पार्ट क्या बनेगा, एक पैरेललिज्म का केस ही बनेगा। देयरफॉर AP इज आल्सो पैरेलल टू DC। तो यहाँ रीजन रहा इसका क्योंकि AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल, इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ द बोथ द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड आर पैरेलल देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो अपन लिख सकते हैं हियर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो क्या हुआ, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD जैसे पैरेललोग्राम बना देन वी कैन से दैट देन AD किसके इक्वल होगा, PC के, AD इक्वल्स टू PC। बट AD हमें ये भी दे रखा है कि AD BC के इक्वल है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। तो AD इक्वल टू PC एंड AD इक्वल टू BC, तो ये PC और BC भी तो दोनों इक्वल होंगे। सो PC इज इक्वल्स टू BC। बात समझ में आई। अब चलो मैं एंगल बोलता हूँ, इसको बोल देते हैं अपन एंगल 1, इसको बोल देते हैं एंगल 2 और इसको बोल देते हैं एंगल 3। ये एंगल A है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोल देते हैं 4 और क्या बोले, बस बहुत है इतना, तो ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं फिर आ रही है। तो PC इज इक्वल टू BC हुआ, हेंस वी कैन से दैट एक बात अपन बोल सकते हैं, ये जो ट्रायंगल होगा CPB या CBB, ट्रायंगल CBP इज एन आइसोसेलेस ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, इन विच, तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना था, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, एंगल A और 2 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये अलाइड एंगल है। अब चलते हैं इन पैरेललोग्राम APCD एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेट सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसकी बात करें तो 1 प्लस 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि एक लाइन पे बने हुए एंगल है इसलिए 180 डिग्री होगा, और ये दोनों एंगल हैं अलाइड एंगल, तो ये 180 डिग्री होगा। अब दोनों इक्वेशन में देखो RHS पार्ट इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ये दोनों पार्ट इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 100% होगा। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो 2 की जगह मैं यहाँ 1 कर रहा हूँ। एंगल A प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आके माइनस बनेगा। सो फाइनली रिजल्ट इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल 3, और एंगल A तो चलो A है, और एंगल 3 इस क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल B का काम कर रहा है। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B हो गया। फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड। अब देखो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर स्पेस बहुत कम बचा है, तो इसके लिए आप नोट कर लें, और मैं यहाँ से इतना सा रब कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ से ये एक्सप्लेन कर दिया कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये 3 है और ये B है,
क्योंकि 3 और b दोनों सेम ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके लिए? क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। हमें प्रूव करना है एंगल D एंड C मतलब एंगल 4, ये दोनों इक्वल है। सेकंड ये है ना, चलो ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। चलो देखो, इन दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। देखो यहां से लिख रहा हूं मैं फॉर द सेकेंड पार्ट, इन ट्रेपेजियम ABCD, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD। तो देखो ऐसे पैरेलल लाइन होंगी तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये सेम ही केस तो बन रहा है ना पैरेलल लाइंस के बीच में। तो अपन बोल सकते हैं व्हाट वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4th। ये 4th है। रीजन इनका रहेगा अलाइड एंगल्स। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए, हमें प्रूव करने के लिए इनके बीच में रिलेशन बना दे। रिलेशन क्या होगा? 3rd and 4th both are equal to 180 degree. So from equation 3rd and 4th, what we can say? LHS part will be equal if RHS are equal. तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल A के इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल A। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल 4। इससे कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या बचा अपने पास? रिमेनिंग रिजल्ट इज एंगल D इज इक्वल टू एंगल 4। और एंगल 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल C को। अपन बोल सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। हमें प्रूव करना है, अब मैं देखो सारा रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ये भी हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ ऐसे। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। तो ये सेलेक्ट कर लो फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। इन ट्रायंगल ABC ध्यान से देखना, ये एंगल ABC की ये साइड BC इज इक्वल्स टू AD, ये हमें दे रखा था। BC इज इक्वल्स टू AD, BC इज इक्वल्स टू AD इज गिवन। क्लियर है बात? ये जो एंगल है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये हमने रिसेंटली प्रूव किया है। तो एंगल B ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल A ऑफ ट्रायंगल DAB। इट इज प्रूव्ड। देखो ये अपन ने यहाँ प्रूव किया था, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। थर्ड अपन बात करें तो AB दोनों में कॉमन है। देखो ऐसे है ना, AB इस ट्रायंगल में भी है और AB इस ट्रायंगल में भी है। AB इज इक्वल्स टू AB, AB इज इक्वल्स टू AB, दिस इज कॉमन साइड। क्लियर है यहां तक? ये कॉमन हुई तो साइड देन एंगल देन साइड, SAS क्राइटेरिया ऑफ congruency. What we can say that triangle ABC is congruent to triangle BAD। ये अपना हो गया थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमें एक डायगोनल इक्वल प्रूव करने हैं। तो फोर्थ पार्ट में अपन बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD using CPCT से अपन बोल सकते हैं क्या? AC इज इक्वल्स टू BD। तो AC इज इक्वल्स टू BD और अपन इनके लिए बोल सकते हैं दोनों डायगोनल हैं, देयरफॉर डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। तो ये अपना हो गया लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12th। एंड फाइनली वी हैव सॉल्व्ड all the questions of exercise 8.1।
Clear? I hope so you understood. So pause the video and note it down, and the next exercise we will try to solve, and basic introduction questions we will discuss in the next videos. Okay student, so enjoy your online classes.